حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں 8 اور 9 جنوری کو پانی کی سپلائی رہے گی متاثر۔ سنگور پروجیکٹ پائپ لائن کی مرمت، مادھا پور، کنڈا پور، KPHB، میاں پور سمیت کئی علاقے ہوں گے متاثر۔ تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، 5 دن تک چلی کارروائی۔ حکومت کے 13 بلوں کو منظور، BRS نے کیا ایوان کا بائیکاٹ۔ حیدرآباد میں گاڑیوں کی آلودگی پر سختی، 24 ماہ میں 51,000 سے زائد گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ تلنگانہ میں سال 2025 کے دوران 8,861 آتش زدگی کے واقعات۔ کویتا اب MLC نہیں رہیں، صدر نشین کونسل سکھیندر ریڈی نے استعفیٰ کر لیا قبول، اعلامیہ بھی کر دیا جاری۔ ماہ مقدس رمضان المبارک سے قبل منسٹر اظہرالدین کا مکہ مسجد میں انتظامات کا جائزہ۔ رمضان کے دوران نمازیوں کو مکمل سہولت فراہم کی جائے گی، تمام محکموں کو باہمی تال میل کی ہدایت۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں 8 اور 9 جنوری کے دوران پینے کے پانی کی فراہمی متاثر رہے گی، کیونکہ سنگور پروجیکٹ کے فیز 3 مین پائپ لائن میں فوری مرمتی کام اور 132 kV کنڈی سب اسٹیشن پر برقی جانچ اور دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق 8 جنوری صبح 10 بجے سے 9 جنوری صبح 4 بجے تک تقریباً 8 گھنٹوں پانی کی سپلائی میں خلل رہے گا، جس سے مادھا پور، کنڈا پور، KPHB، میاں پور، حفیظ پیٹ، فتح نگر، بالا نگر، بھرت نگر، موسیٰ پیٹ، BHEL، چندن نگر، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سمیت کئی علاقوں کے مکین متاثر ہوں گے۔ واٹر بورڈ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اس دوران پانی کا محتاط اور کفایتی استعمال کریں تاکہ کسی بڑی پریشانی سے بچا جا سکے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ایوان کی کارروائی 5 دن چلائی گئی، جس میں حکومت نے 13 بلوں کو منظوری دلائی۔ اس اجلاس میں حیدرآباد انڈسٹریل لینڈ ٹرانسفارمیشن پالیسی اور تلنگانہ رائزنگ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایوان میں مختلف امور پر تفصیلی مباحث ہوئے۔ پہلے دن آبی تقسیم کے مسئلے پر BRS اور کانگریس ارکان میں لفظی تکرار ہوئی۔ سیشن کے پہلے دن قائد اپوزیشن کے چندر شیکھر راؤ بھی اسمبلی میں شریک ہوئے تھے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ان سے ایوان میں ملاقات بھی کی تھی۔ دوسرے دن سے BRS نے اسپیکر پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے سیشن کا بائیکاٹ شروع کر دیا تھا۔ وزیر آبپاشی مسٹر N اتم کمار ریڈی نے حیدرآباد انڈسٹریل لینڈ ٹرانسفارمیشن پالیسی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت اس پالیسی کے ذریعے 10,000 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ حکومت صنعتوں کو آؤٹر رنگ روڈ سے باہر کے علاقے میں منتقل کرنا چاہتی ہے تاکہ حیدرآباد کو آلودگی سے پاک کیا جا سکے۔ اسپیکر اسمبلی نے بتایا کہ ایوان کی کارروائی 5 دن تک چلی، جس میں 13 بلوں کو منظوری دی گئی۔ Statistics. Number of days for which the assembly sat, 5 days. Number of hours for which the assembly worked, 40 hours 45 minutes. Number of starched questions unstarched orally, 32. Number of answers the starched questions placed on the table of the House on 06/01/2026, 7. Number of supplementaries made by the members, 82. Number of speeches made by the members, 66. Number of government resolutions adopted, 2. Number of bills introduced and passed, 13. Number of short discussions discussed, 4. Party position in the assembly as on 06/01/2026. INC 66, BRS 37, BJP 8, AIMIM 7, CPI 1, total 119.
Now, with the consent of the House, I urgent the House Sunny Day. हैदराबाद में गाड़ियों से होने वाली आलूदगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 24 माह के दौरान शहरी हुदूद में 51,000 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं और 6 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना वसूल किया है। असेंबली में सवालात के जवाब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने बताया कि 22,340 गाड़ियां फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर जबकि 28,970 गाड़ियां पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट के बगैर चलती हुई पकड़ी गई हैं, जिसके नतीजे में फिटनेस खिलाफ वर्जियों पर 4.28 करोड़ और PUC खिलाफ वर्जियों पर 2.38 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जा रहा है। रियासत में 1.8 करोड़ गाड़ियां और 550 पोल्यूशन टेस्टिंग मराकज़ काम कर रहे हैं, जबकि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने और खुदकार टेस्टिंग स्टेशन कायम करने जैसे इक़दाम से आलूदगी पर काबू पाने की कोशिश तेज कर दी गई है। ఇప్పటికే ఈ ఫిట్నెస్కు సంబంధించి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,80,00,000 వాహనాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. 1,80,00,000 వాహనాలకు సంబంధించి మరి నిరంతరంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 550 పొల్యూషన్ టెస్టింగ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ఇది కాక ఇప్పటికే ఒక 15 ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్, అంటే మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా కంపల్సరీ వాహనాలన్నీ ఫిట్నెస్ ఉండి అందులో పొల్యూషన్ రహితంగా ఉండాలనేటువంటి టాప్ ప్రయారిటీ తీసుకొని మరి డిపార్ట్మెంటు వారు చెప్పినటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా పొల్యూషన్కు సంబంధించి పొల్యూషన్ రహితంగా ఉండడానికి మీరు గతంలో ఆర్టీసీకి చూస్తే కూడా మనం బస్సు వెనుక పోవాలంటే బట్టలు నలగేటువంటి పరిస్థితి ఉండే. ఇలా ఆర్టీసీ ఒక విధానపర నిర్ణయం తీసుకొని 15 సంవత్సరాల పైబడ్డటువంటి వాహనాలన్నీ కూడా స్క్రాపింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ వాహనాలకు సంబంధించిన మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫెడరల్ సిస్టంలో రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినటువంటి హక్కు ద్వారా ఈ యొక్క స్క్రాప్ను 15 సంవత్సరాలు పైబడ్డ ప్రభుత్వ వాహనాలను కూడా ఖచ్చితంగా వాటిని స్క్రాప్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అయితే బయట ప్యాసింజర్కి సంబంధించిన వాహనాలకు సంబంధించి గ్రీన్ ట్యాక్స్ పేరు మీద ఎగ్జంప్షన్ చేసి ఆ వాహనాలను నడుపుకోవడానికి ఒక జీవోలో వెసులుబాటు ఇచ్చినారు. దాన్ని కూడా మేము అనేక సందర్భాల్లో మరి కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ గారు కలిసినప్పుడు ఈ వెసులుబాటు వల్ల కఠినంగా మేము నిర్ణయించలేకపోతా ఉన్నాం. ఆ 15 సంవత్సరాలు వాహనాలు దాటి పొల్యూషన్ కారణమవుతున్న వాహనాల మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నామని చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అది కేంద్రం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం. 15 సంవత్సరాలు పైబడ్డ అన్ని వాహనాలను స్క్రాప్కు తీసుకుపోయేటువంటి విధంగా, అదేవిధంగా గౌరవ సభ్యులు మాట్లాడినటువంటి విధంగా ఈ ఫిట్నెస్కు సంబంధించిన ఏ విధంగానైతే ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్ మొదటి దశలో 15, మొత్తంగా 37 కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో పోయే విధంగా చేస్తాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ డ్రైవింగ్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్. ఈ మధ్య ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఢిల్లీలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా పొరపాటున ఇచ్చినట్టయితే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ తక్కువ ఉండాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో దానిలో భాగంగానే చెక్ పోస్టులు ఎత్తేసినాం, వాహన సారథిలో జాయిన్ అవుతా ఉన్నాం, స్క్రాప్ పాలసీ తీసుకొచ్చినాం, కెమెరాస్ను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా రవాణా శాఖను కూడా అప్రమత్తం చేసుకొని ముందుకు పోయే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. అందులో భాగంగానే ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్. కానీ పొల్యూషన్ సంబంధించి వారు గౌరవ హైదరాబాద్ సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా వాటర్ ట్యాంకర్స్ సప్లై సందర్భంగా మేము కూడా అప్పుడప్పుడు గమనిస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా మా శాఖను ఇమీడియట్గా వాటర్ బోర్డుకు సంబంధించి ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీగా, ఎందుకంటే పబ్లిక్ కన్జంప్షన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇస్తుంది కాబట్టి, బట్ ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ ఒక నోటీస్ ఇచ్చి అన్ని వాహనాల ఫిట్నెస్ పొల్యూషన్కు సంబంధించి కొన్ని హైర్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఓన్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా పొల్యూషన్ కారణమవుతున్నప్పుడు दान में कठिन चर्यలు తీసుకోవాల్సి। तेलंगाना में साल 2025 के दौरान आतिशबाजी के 8,861 वाकयात पेश आए हैं, जिनमें से 163 अफराद जांबाग हुए, जबकि 879 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियाती नुकसान रिकॉर्ड किया गया। असेंबली के सरमाई इजलास में फायर सर्विसेज महकमा पर बहस के दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने बताया कि साल के 2 बड़े सानेहात में संगारेड्डी के करीब
सकाची इंडस्ट्री धमाका और हैदराबाद के चार मीनार में आतिशबाजी शामिल हैं, जहां एक ही मकान में 17 अफराद जाँ बहक हुए थे। वजीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत फायर सेफ्टी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए जामा इक़दाम कर रही है। रियासत में इस वक्त 138 फायर स्टेशन मराकज़, 544 फायर गाड़ियाँ और हालिया बरसों में 58 नए फायर स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि अवामी बेदारी के लिए 13,658 फायर सेफ्टी प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करके अवाम को बचाव और तहफ़्फ़ुज़ की तरबियत दी गई है। तेलंगाना जागृति की सरबराह के कविता अब कानून साज कौंसिल की रुकन नहीं रही। कौंसिल की रुकनियत से इनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया। सदरनशीन कानून साज कौंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी ने कविता का इस्तीफा कबूल कर लिया और इस सिलसिले में एलामिया भी जारी कर दिया गया है कि कविता ने बीआरएस में दाखिली इख्तलाफात के बाद पार्टी और कौंसिल की रुकनियत दोनों से इस्तीफा पेश कर दिया था। उन्होंने 5 दिसंबर को कौंसिल में खिताब भी किया था और सदरनशीन से इस्तीफा कबूल करने के लिए इसरार किया था। अपने खिताब में कविता ने तरदीद की थी कि खानदान में जायदाद की तकसीम के मसले पर तनाज़ा था। उन्होंने कहा था कि ये कोई जायदाद का तनाज़ा नहीं था, बल्कि इज्जत नफ्स की लड़ाई थी। कविता ने रियासत भर में जन्म बांटा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और वो मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकातें कर रही हैं और इनके मसाइल की समाअत कर रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि कविता बहुत जल्द नई सियासी पार्टी भी तश्कील दे सकती हैं। तेलंगाना जागृति के दफ्तर से के कविता से इजहार यगानिगत करने के लिए अवाम का हुजूम जमा होने लगा है। कई तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और अवामी इदारों के जिम्मेदारान वगैरह भी के कविता से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। कविता ने कानून साज कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा पेश कर दिया है और कौंसिल के सदरनशीन जी सुकेंद्र रेड्डी ने इनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया है। अब कविता से इजहार यगानिगत और हमदर्दी करने के लिए तेलंगाना जागृति के दफ्तर पर जागृति कारकुनों, कविता के हामियों और मुख्तलिफ समाजी व अवामी कायदीन की कसी तादाद पहुँचने लगी है। कहा गया है कि तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता रहे JAC कायदीन, अवामी तंजीमों, सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा कायदीन ने भी जागृति के दफ्तर पहुंचकर कविता से इजहार यगानिगत किया और कहा कि कविता की तायद व हिमायत वक्त की अहम ज़रूरत है। बीआरएस के वर्किंग सदर और साबिक रियासती वजीर KT रामाराव रियासत के मुख्तलिफ अजला के दौरे के सिलसिले में आज जिले खम्मम पहुंचे, जहां रास्ते भर मुख्तलिफ मुकामात पर पार्टी कारकुनों और अवाम ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पालेरू असेंबली हल्के पहुंचने पर गुलाबी परचमों से सजे कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद ने KTR की गुलपोशी की, जबकि खम्मम पहुंचने पर बीआरएस से वाबस्ता नौजवान बाइक्स पर इनके काफिले में शामिल हुए और पार्टी के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार से कबल जिन जमानतों का वादा किया था वो आज गायब हो चुकी हैं। उन्होंने सवाल किया कि गारंटी कार्ड अब कहां रखा जाए। KTR ने इल्जाम आयद किया कि खम्मम जिले में 3 उजरा मुबैना तौर पर 30% कमीशन वसूल कर रहे हैं और अवाम को धोखा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में साबिका खम्मम जिले से बीआरएस 7 से 8 MLA निशिस्तें जीतकर मजबूत कामयाबी हासिल करेगी। 30% అని పట్టుకున్నారు. అది ఎవల గురించో మీకు తెలుసు. ఒక మంత్రి కాదు, మీ జిల్లాలో అందరు మంత్రులు 30% నడిపిస్తున్నారు. బి ట్యాక్స్ 30%. ఇక్కడ పక్కన పి ట్యాక్స్ బాంబులేటి మంత్రి గారికి ఆయన ట్యాక్స్ కూడా 30%. ఏ భూమి ఆయన దగ్గర పోయినా 30% నాకు ఇచ్చేయమని అడుగుతున్నాడు బాంబులేటి గారు. అట్లాగే ఇక్కడున్న తుమ్మల గారు కూడా ఆయన కూడా అదే పనిలో ఉన్నాడు. ఎవరికి వాళ్ళు ముగ్గురు ఇవాళ ఏ ఒక్కరు కూడా జిల్లాకి పనికొచ్చే ఒక్క పని కూడా చేయడం లేదు. ముగ్గురు మోసగాళ్ళు, మొనగాళ్ళు కాదు. ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ఈ ముగ్గురు మోసగాళ్ళకి అసలైన నాయకుడు ఎవడా అంటే అలీబాబా పైన ఉన్నాడు. ఇక మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు ఆయన కథ. అయితే నోరు బారేసుకోవడం, జర్ర 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 6 గ్యారంటీలు అన్నారు, 420 హామీలు ఇచ్చారు. పక్క నియోజకవర్గం మదిర, నాకు ఇంకా గుర్తుంది, డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న ఆనాటి CLP లీడరు, మదిర ఎమ్మెల్యేగా ఆనాడున్న బట్టి విక్రమార్క గారు ఆ రోజు అన్న మాట ఇంకా నాకు నా చెవుల్లో ఇంకా వినబడతా ఉన్నది. గ్యారంటీ కార్డులు పట్టుకొని ఆ రోజు ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు,
ఈ గ్యారంటీ కార్డుని అత్యంత భద్రంగా భద్రపరచుకోండి. 3 నెలలు జాగ్రత్తగా దీన్ని కాపాడుకోండి. మా ప్రభుత్వం రాగానే మీరు ఈ గ్యారంటీ కార్డు తీసుకొని రాగానే అందరికీ 100 రోజుల్లో దీన్ని అమలు చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేయబోతా ఉన్నాం. భద్రంగా పెట్టుకోండి, గ్యారంటీ కార్డులు భద్రంగా దాచిపెట్టుకోండి. 100 రోజుల్లో ఇది చాలా విలువైన కార్డు. ఈ కార్డుని మరి భద్రంగా పెట్టుకుంటే 100 రోజుల తర్వాత మా గవర్నమెంట్ రాగానే 2,500 మహిళలకు ఇస్తాం, 4,000 రూపాయలు ముసలోళ్ళకి ఇస్తాం, తులం బంగారం ఇస్తాం, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తాం. భద్రంగా పెట్టుకోండి కార్డు అన్నారు బట్టి గారు. మరి ఇవాళ నేను బట్టి గారిని అడుగుతున్నా, బట్టి గారు 100 రోజులు కార్డును పెట్టుకోమన్నారు. మరి ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి కార్డు? ఎక్కడ పెట్టుకోమంటావు ఇప్పుడు కార్డు? చెప్పు, ఎక్కడ పోయింది నీ 2,500? ఎక్కడ పోయింది 4,000 పెన్షను? ఎక్కడ పోయింది తులం బంగారం? ఎక్కడ పోయినాయి స్కూటీలు? ఎక్కడ పోయినాయి విద్యా భరోసా కార్డులు? ఎక్కడ పోయినాయి 1,00,000 కోట్ల బడ్జెట్, బీసీలకి 42% రిజర్వేషన్లు? చెప్పుకుంటూ పోతే 420 హామీలు. ఒకటి కాదు, 2 కాదు. సర్వభ్రష్ట ప్రభుత్వం ఇది. సర్వే సర్వత్రా అందరినీ మోసం చేసిన ప్రభుత్వం. అక్కడ మా తమ్ముళ్ళు 30% అని పట్టుకున్నారు. అది ఎవరి గురించో మీకు తెలుసు. ఒక మంత్రి కాదు, మీ జిల్లాలో అందరు మంత్రులు 30% నడిపిస్తున్నారు. బీ ట్యాక్స్ 30%. ఇక్కడ పక్కన పీ ట్యాక్స్ బాంబులేటి మంత్రి గారికి ఆయన ట్యాక్స్ కూడా 30%. ఏ భూమి ఆయన దగ్గర పోయినా 30% నాకు ఇచ్చేయమని అడుగుతున్నాడు బాంబులేటి గారు. అట్లాగే ఇక్కడున్న తుమ్మల గారు కూడా, ఆయన కూడా అదే పనిలో ఉన్నాడు. ఎవరికి వాళ్ళు ముగ్గురు ఇవాళ ఏ ఒక్కరు కూడా జిల్లాకి పనికొచ్చే ఒక్క పని కూడా చేయడం లేదు. आने वाले माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के पेश नज़र चार मीनार जोन में इंतजामात का तफसीली जायजा लेने के लिए तेलंगाना के अक़लियती उमूर के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, टिमरीज़ के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह और MIM चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने तारीख़ी मक्का मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर GHMC, वाटर बोर्ड, बरक़ियात, लाइन ऑर्डर व ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर अक़लियती उमूर ने मस्जिद के अतराफ सफाई, रोशनी, पानी की फराहमी और नक्कासी आब के इंतजामात को हर हाल में बेहतर रखने की सख्त हिदायत दी और कहा कि रमज़ान के दौरान नमाजियों को किसी भी किस्म की दुश्वारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत के मक्का मस्जिद में जनाजा लाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और इस पर वज़ीर ने फौरी ACP चार मीनार को हिदायत दी कि मस्जिद तक जनाजों की आमदोरफ्त के लिए मुनासिब और बाबिखार रास्ता फराहम किया जाए और ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मक्का मस्जिद जैसे मुक़द्दस मुकाम पर इंतज़ामी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम महकमों बाहमी तालमेल के साथ रमज़ान के दौरान अमन, सहूलत और पाकीज़गी को यकीनी बनाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर जो मक्का मस्जिद में रमज़ान के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से जो काम होते हैं, आप तमाम लोग इससे वाकिफ़ है। इस साल भी उन्होंने नुमाइंदगी की बलदिया से और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम हमारे कमिश्नर साहब बलदिया के सैंक्शन कर दिए हैं। सबसे बड़ा काम यह रहता है कि जो रमज़ान में जो पंडाल डाला जाता है, यहाँ पर पंडाल का सैंक्शन हुआ और जो जितने सिविल वर्क्स मेंटेनेंस के थे उन तमाम का ये फ्लोरिंग का काम और जो बाद में दीवार का काम था वो काम सैंक्शन हुआ। पेंटिंग और लाइट्स का टेम्पररी लाइटिंग, जितने भी काम थे रमज़ान में वो काम पूरे सैंक्शन हो चुके हैं बल्दिया की जानिब से नखीब मिल्लत की नुमाइंदगी के ऊपर। और आज मिनिस्टर साहब ने दौरा किया और अहम काम ये था कि मैं ये बात का अभी आपके सामने रखा कि मक्का मस्जिद में पिछले साल भी जब हमने यहाँ पर दौरा हुआ था, मिनिस्टर साहब का हुआ था दौरा, जब मैंने बताया था कि यहाँ पर जानी मास की ज़रूरत थी, जानी मास के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था, अभी तक वो नहीं हुई, तो वो भी मैं अभी आपको बताया हूँ। जब शफ़ीउल्लाह साहब और हमारे मिनिस्टर साहब ने अभी और फ़हीम कुरैशी साहब ने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कहा कि फ़ौरन यहाँ पर जानी मास डाला जाए। जानी मास का एक अहम काम था और दूसरा साउंड सिस्टम का और जो एक लाइटिंग है वो लाइटिंग का काम था, ये हमने बताया। इंशाअल्लाह ताला वो काम भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। मैं
पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रमज़ान के तौर पर सिक्योरिटी मेजर्स आप लीजिए, जो आप कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए आप करिए, उसके बीच में कोई नहीं आएंगे। और तमाम ऑफिसर से भी मैं कहूँगा जैसे हर साल काम करते थे, बलदिया की जानिब से काम होता था, सैनिटेशन का काम होता है यहाँ पर, वाटर वर्क्स की जानिब से जो काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के टेम्पररी ट्रांसफार्मर्स लगते हैं, टेम्पररी अब की मरतबा हमने ये भी कहा टेम्पररी जनरेटर के लिए वो भी लगाने के लिए फ़हीम खोरी साहब ने बताया। तमाम काम मुझे पूरी उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी बेहतर से बेहतर अंदाज में काम होगा। शुक्रिया। मुझे मौका मिला है कि हिस्टोरिक मस्जिद है, ये 400 साल पुरानी मस्जिद है, बट मैं जहाँ तक के मैं देखा मेरे को तो इतना मेंटेनेंस यहाँ पे कुछ लगा नहीं, सॉरी टू से, बट जो भी मेंटेन कर रहे हैं मुझे पता नहीं कैसे कर रहे हैं क्या नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपको आज बोल के जा रहा हूँ कि ये हिस्टोरिक मस्जिद है, इसका मेंटेनेंस 12 महीने होना, इसका खाली रमज़ान आए तो बस मेंटेनेंस होता है, रमज़ान आए तो हर चीज़ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये मीटिंग एक्चुअली लेना ही नहीं चाहिए, टू बी फ्रैंक। ऐसा अगर हर एक आदमी अपना अपना अच्छा काम कर ले बराबर, ठीक है, जो भी कंस्टेंट्स है, जो फाइनेंशियल कंस्टेंट्स है वो शफीउल्लाह साहब देखते हैं, बट लोग जो भी यहाँ पे आए हैं, मैंने जो देखा है कि मेरे को तो उतना वो नहीं लगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो जो ठेले का है, आपके पुलिस का डिपार्टमेंट भी है और जो भी है, आप बिल्कुल ठेले वालों को बिल्कुल यहाँ पे उनका कोई मस्जिद का एक्सेस ईजी रहना चाहिए। आप पूरा देखो, आप कोई भी आया एक्शन ले उसके ऊपर, क्योंकि आई नो मैं आपके ड्यूटी में मैं कभी इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, कभी कुछ भी नहीं करूँगा, बट आपको आपकी ड्यूटी मालूम, आपको पता है क्या करना क्या नहीं करना। बट लेकिन अगर आप एकदम सही तरीके से काम करेंगे तो ये सब इश्यूज नहीं आते। आप जो भी रहे आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो, उस पर आप भी थोड़ा इनको वो हेल्प कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है मान लो नॉर्मली लोग डरा धमका के काम करने नहीं देते, बट लेकिन आप काम जो होगा ना, आप बिल्कुल इस टाइम पे मैं बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं जानता हूँ मैं, आप एक्सक्यूज़ मत दीजिए, ये नहीं हो रहा, ये नहीं था, वो नहीं था, आप पहले से ही काम करें। अभी आज 1-1.5 महीना बचा हुआ है रमज़ान के लिए, अब मेरे को पूरा एकदम हर चीज़ एकदम अच्छी चाहिए। मौसमी और वबाई अमराज की रोकथाम में हैदराबाद की काविशों की मरकजी हुकूमत की जानिब से सताइश की गई है। नागपुर में मेट्रो वाटरपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट्स का एक इजलास मुनाक़द हुआ, जिसमें हैदराबाद के इक़दामात की सताइश की गई। इस मौके पर कमिश्नर जीएचएमसी मिस्टर आरवी कन्नन ने इस बात को वाज़ेह किया कि वो हैदराबाद में किस तरह से साल 2025 के दौरान डेंगू के मामलात पर काबू पाने के इक़दामात किए गए और पानी से फूलने वाली दीगर बीमारियों पर भी काबू किया गया। कमिश्नर जीएचएमसी ने वाज़ेह किया कि इस काम में टेक्नोलॉजी से भी मदद ली गई और बरवक्त इक़दामात करते हुए इन बीमारियों की रोकथाम के इक़दामात किए गए। हुकूमत हिंद की जानिब से हैदराबाद में टेक्नोलॉजी की मदद से डाटा की बुनियाद पर किए गए इक़दामात की सताइश की गई और बैन महकमा जाती इश्तराक की सताइश भी की गई। हुकूमत ने कहा कि शहरी इलाकों में पानी के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए ये तरीक़ेकार मौसर है और इसे दूसरे शहरों में भी इख्तियार किए जाने की ज़रूरत है। हैदराबाद में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ एक तारीखी कार्रवाई करते हुए हाइड्रा ने 1313.19 एकड़ कीमती सरकारी अराजी नाजायज कब्जों से आज़ाद कर ली है, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन 65,650 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस अराजी में झीलें, पार्क्स, सड़कें और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज शामिल हैं। मसूरी में वाक़े लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर IAS ऑफिसरान से खिताब करते हुए हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ ने कहा कि तेज रफ्तार शहरी तोसी के बायस शहरों में आफत का खतरा बढ़ रहा है, जबकि हाइड्रा एक मुनफरिद और वेटरनरी मॉडल है जो सैलाबी खतरात को कम करने, मौसमी नदी के कुदरती बहाव को बहाली, झीलों और नालों के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती असासों की हिफाजत के लिए पेशगी हुक्मरानी को फ़रोग़ देता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मुहिम से न सिर्फ सप्लाई मसाइल में कमी आई है, बल्कि शफाफियत के बायस अवामी हिमायत और रियल इस्टेट सेक्टर में एतमाद भी बढ़ा है। हैदराबाद में सर्दी में शिद्दत पैदा हो गई है और रात के दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 4 से 5 दिन सर्दी की लहर जारी रहेगी और सुबह और रात के औकात में कोहर होगा और दर्जे हरारत मामूल से कम दर्ज किया जाएगा। शहर के अलावा दीगर अजला में भी कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है।
शहर में दर्जे हरारत में खातिर ख्वाह गिरावट आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के करीब मंगल और चारशंबे के दरमियानी शब दर्जे हरारत 9.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा मारेटपल्ली, बहादुरपुरा, तिलमलगिरी और शेखपेट के इलाकों में भी दर्जे हरारत 13 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी शदीद सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। मौलाली के इलाके में दर्जे हरारत 9.6 डिग्री और अलवाल में 10.7 डिग्री दर्ज किया गया है। बुलारम में 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में दर्जे हरारत में गिरावट आई है और इसका सिलसिला आइंदा चंद दिन तक जारी रह सकता है। जीएसटी की चोरी के मामले में तेलंगाना कांग्रेस के एक लीडर सुनील कुमार को जीएसटी इंटेलिजेंस हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। सुनील कुमार ऑरेंज ट्रैवल्स के एमडी हैं और वो कांग्रेस के सीनियर कायद भी हैं। चारशंबे की सुबह इन्हें जीएसटी हुकाम ने हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। अहदेदारों का कहना है कि सुनील कुमार ने तकरीबन 28 करोड़ रुपए जीएसटी की चोरी की है। कहा गया है कि इस चोरी का इंकशाफ जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच में हुआ है। रियासत भर में टैक्स चोरी में मुलविस ताजरों के खिलाफ हुकाम की जानिब से सख्त कार्रवाइयां जारी हैं और इस सिलसिले में जांच के दौरान सुनील कुमार की जानिब से भी टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ था। सुनील कुमार ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में निजामाबाद जिले में बालकोंडा हल्के असेंबली से कांग्रेस टिकट पर मुकाबला किया था। ताहम इन्हें बीआरएस उम्मीदवार वी प्रशांत रेड्डी के खिलाफ शिकायत का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद के एसआर नगर इलाके में गैर कानूनी सीवरेज कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने 19 अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी की हिदायत पर विजिलेंस हुक्काम ने O&M डिवीजन नंबर 6 के तट्टी खाना सेक्शन में कार्रवाई की, जहां जीएचएमसी की जानिब से नई सड़क की तामीर के दौरान वाटर बोर्ड के मेन सीवरेज पाइपलाइन से बगैर इजाजत और फीस अदा किए गैर कानूनी नाला कनेक्शंस का इंकशाफ हुआ है। हुकाम ने फौरी तौर पर तमाम नाजायज कनेक्शंस मुनक़ता करते हुए मुलविस अफराद के खिलाफ केस दर्ज किए और सख्त इंतबाह दिया कि आइंदा भी ऐसे किसी फाल पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि शहरियों से अपील की गई है कि गैर कानूनी पानी या सीवरेज कनेक्शंस की इत्तला वाटर बोर्ड के विजिलेंस हेल्पलाइन नंबर पर दे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की खुसूसी सफाई मुहिम 9वें दिन भी जोरों शोरों से जारी है, जिसमें शहर के तमाम 300 वार्ड्स को शामिल किया गया है। इस मुहिम में आला हुक्काम खुद फील्ड पर मौजूद रहकर काम की निगरानी कर रहे हैं ताकि रिहायशी इलाकों, पार्क, सड़कों और अवामी मुकामात को साफ और महफूज बनाया जा सके। 9वें दिन खास तौर पर सब्ज फजूला जैसे खुश्क पत्ते, बागीचा और मलबे की सफाई पर जोर दिया गया था ताकि मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके और माहौल को सेहतमंद बनाया जा सके। शहरियों से भी अपील की गई है कि वो सब्ज फजूला अलहदा रखें, इसे सिर्फ स्वच्छ ऑटोस के जरिए जमा करवाएं, सड़कों या खुले मुकामात पर ना डालें और बड़े फजूले की इत्तला पहले जीएचएमसी को दें ताकि सबके लिए साफ सुथरा और सब्ज हैदराबाद को यकीनी बनाया जा सके। जिले आदिलाबाद में खवातीन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीही करार देते हुए जिले एसपी अखिल महाजन आईपीएस ने कहा कि इस सिलसिले में मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आज तामसी पुलिस स्टेशन का दौरा करके खवातीन पुलिस अमले के आराम और रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए कायम नए खुसूसी कमरे का इफ्तिताह किया, जिसमें खातून कांस्टेबल और खातून होम गार्ड्स ने रिबन काट कर शिरकत की। एसपी ने बताया कि जल्द जिले में खवातीन पुलिस अमले के जरिए गश्त का आगाज और शी टीम की 24 घंटे दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि स्कूलों, कॉलेजों और देहातों में खवातीन और बच्चियों को जराइम से आगाही फराहम की जा रही है। उन्होंने तामसी स्टेशन के रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि रिकॉर्ड की बरवक्त तजदीद, ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की मुकम्मल तहकीकात और मुतासरीन के मसले की संजीदा हल को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर डीएसपी एल जीवन रेड्डी, रोलर सीआई के फनीधर, एसआई एस जीवन रेड्डी, खातून कांस्टेबल शामिल, होम गार्ड रेखा और दीगर अफसरान मौजूद थे। आदिलाबाद डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने उर्दू मीडिया से अपने चंबर में बात करते हुए लॉज मालिकान को हिदायत दी है कि लॉज आने वाले हर शख्स के असल शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद ही
कमरा उलट किया जाए और तमाम तफसीलात रजिस्टर में दर्ज की जाए। उन्होंने लॉज की हर मंजिल पर सीसीटीवी कैमरे तनसीब, पुलिस इजाज़त के बगैर MLM मीटिंग्स की मुमानियत और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। बादअज़ां DSP की सदारत में निजी ट्रैवल्स बस मालिकान के साथ इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें हर बस में CCTV लगाने से रोड सेफ्टी क़वानीन पर अमल करने, ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट और मशकूक सामान पर या मुसाफिरों को फौरी इत्तला देने को हिदायत दी गई है। ओनर्स एंड मैनेजर्स को हमारा एडवाइस क्या है, तो कोई कस्टमर्स आके रूम्स के लिए रिक्वेस्ट करते टाइम में वो कस्टमर्स का, पब्लिक का आइडेंटिटी ओरिजिनल चेक करना, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल चेक करके इसका जिराक्स लेके फाइल को रखना। एंड रिकॉर्ड्स में भी वो आए सौ आदमी कौन कौन है, इसका नेम एंड टोटल डिटेल्स रिकॉर्ड में एंट्री करना। कितने आदमी आए तो भी उसका पूरों का आधार कार्ड कलेक्ट करके रिकॉर्ड में रखना। रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करे तो कोई आपका होटल्स लॉज में रहने वाला कुछ क्राइम करे तो पुलिस डिपार्टमेंट आपके ऊपर एक्शन लेने का चांस रहता। एवरी होटल एंड लॉज ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें लॉज में स्टे करे सो हर एक आदमी का रिकॉर्ड रहना, उन लॉज में इसका एक्टिविटीज़ भी ऑब्जर्वेशन में रखना। कुछ सस्पिशियस मटेरियल लाए तो चेक करके पुलिस को इन्फॉर्म करना। अब चेक करना, कोई प्रॉब्लम रहे तो पुलिस को 100 डायल करे तो हम आके इसका आदमी को, नहीं तो इसका लगेज भी चेक करते हैं। जिले वरंगल में वाक़े उर्स जागीर की क़दीम दरगाह हज़रत सैयदना जलालुद्दीन शाह जमाल माशूक़ रब्बानी सानी रहमतुल्लाह अलैह का 417वां उर्स शरीफ निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत 11 जनवरी को संदल शरीफ और 12 जनवरी को उर्स शरीफ मुनक़द होगा। इस सिलसिले में दरगाह के सज्जाद नशीन व मुतवल्ली सैयद हैदर हिलाल उद्दीन उर्फ नवीद बाबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उर्स की तफसीलात से आगाह किया। बादअज़ां उर्स शरीफ के पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई, जिसमें ब्रादरे सज्जादा, उबैद बाबा, सैलानी बाबा और दीगर मुअज़्ज़िज़ हज़रात शरीक थे। बाबा साहब सज्जादा नशीन व मुतवल्लिद दरगाह हज़रत सैयदना जलालुद्दीन क़ादी शाह जमाल अल-बहर माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का 417वां उर्स शरीफ 2026 को बड़ी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है, जिसमें जलसे औलिया से मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, मौलाना अज़ीज़ुल्लाह ख़ादिर साहब, मौलाना जाफ़र आबिदीन साहब और सैयद मखदूम मुहिउद्दीन साहब तेलुगु में मुखातिब फरमाएंगे। 21 रजब बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा ठीक 9 बजे होगी और बाद नमाज इशा के जलसा अज़मत औलिया व अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरिया जदीद में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और जिसमें मुक़र्रिरीन ने ख़िताब फरमाएंगे। और 22 रजब को गरिया जदीद में लंगर आम व ख़ास रहेगा और बाद नमाज इशा डफ़ हम्मादी ब्रदर्स हम्द व नात सुनाने की सादत हासिल करेंगे। और 23 रजब को बाद नमाज फ़जर ख़त्म कुरान से इख्तिताम अमल में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिनिस्टर कुंडा सुरेखा साहब की जानिब से यहाँ पर जो डेवलपमेंट के जो काम जो किए जो जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सराय खाना और जो औरतों के लिए मस्जिद और टॉयलेट और वज़ू खाने का भी ज़ोर से काम जो जारी है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्स शरीफ के इंतज़ामात में कुंडा सुरेखा साहबा, कलेक्टर साहबा और कमिश्नर साहबा ने बखूबी अपने काम को अंजाम देंगे। रजब मासानी के संबंधित इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 8 और 9 जनवरी को पानी की सप्लाई रहेगी मुतासिर। सिंगूर प्रोजेक्ट पाइपलाइन की मरम्मत। माधापुर, कुंडापुर, KPHB, मियाँपुर समेत कई इलाके होंगे मुतासिर।
तेलंगाना असेंबली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 5 दिन तक चली कार्रवाई। हुकूमत के 13 बिलों को मंजूर। बीआरएस ने किया ऐवान का बाइकॉट। हैदराबाद में गाड़ियों की आलूदगी पर सख्ती। 24 माह में 51,000 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। तेलंगाना में साल 2025 के दौरान 8,861 आतिशबाजी के वाक़यात। कविता अब एमएलसी नहीं रही। सदरनशीन कौंसल सुखेंदर रेड्डी ने इस्तीफा कर लिया कबूल। एलामिया भी कर दिया जारी। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक से क़ब्ल मिनिस्टर अज़हरुद्दीन का मक्का मस्जिद में इंतज़ामात का जायज़ा। रमज़ान के दौरान नमाजियों को मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। तमाम महकमों को बाहमी तालमेल की हिदायत। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।